We will move to the next gift of the Holy Spirit. हम अभी आगे बढ़ेंगे, अगले वरदान के बारे में हम सीखेंगे। From the second division of gift of faith, और दूसरा जो दर्जा हम लोग वरदान के बारे में सीख रहे थे, we are going to see the third gift in that, the working of miracles. और चमत्कार के कामों के वरदान के बारे में आज सीखेंगे। Working of miracles is the fifth gift in that 9 gifts which we read from 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का जब हम 8 से 10 में पढ़ते हैं तो हमने उसमें देखा कि वो 5वां स्थान पे चंगा करने के वरदान के बारे में लिखा है। So the working of miracle is in the division of third gift of the division of gift of power. और जो हम सामर्थ के कामों के बारे में, जो शक्ति के बारे में हम सीख रहे हैं, उसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है इस वचन में। Working of miracle is a spiritual gift of working of miracle is a supernatural ability given by the Holy Spirit. और आत्मा के साथ चमत्कार के कामों को करना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक योग्य बनाने के लिए आपको दिया गया है। It is to be performed the deeds that go beyond the natural laws of the universe. और इस पूरे सृष्टि के वातावरण के ऊपर आपको काम करने के लिए प्रभु ने ये वरदान दिया हुआ The है। working of miracle, this gift enables believers to be instruments of God's power. परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करने के लिए विश्वासी को ये चमत्कार का वरदान दिया जाता है। Manifesting miracles that can include instantaneous healings, resurrections, creation of something out of nothing. और परमेश्वर के इस चमत्कार को जो सामर्थ के कामों का चमत्कार इस योग्य बनाता है कि आप दोबारा जी उठने की शक्ति को पा सकें और अनेक ऐसे काम कर सकें जो हमारे योग्य करने के नहीं है, लेकिन प्रभु हमें उसमें बलवान बनाता है। Jesus multiplied the 5 bread into for the 5,000 people. और प्रभु यीशु ने 5 रोटियों को 5,000 For 5,000 people. और 5,000 लोगों के लिए बढ़ा दिया था, बना दिया था। This is a example for the miracle. ये चमत्कार की एक उदाहरण है। And many dead are resurrected through Jesus and through the disciples. That is an example of working of miracle. प्रभु यीशु के द्वारा, उनके चेलों के द्वारा बहुत सारे मुर्दा भी जी उठे थे, वो भी एक चमत्कार के वरदानों का कार्य है। This is distinct from the healing gift. This is not same as the gift of healing. ये चंगाई के वरदान के समान नहीं है। When the gift of working miracle perform, there may be healing, but the gift of healing is not the one is working there, but the miracle is working. कई बार ऐसा होता है जब आपके अंदर से चमत्कार की शक्ति काम करती है, हो सकता है चंगाई हो, वो चंगाई आम भाषा में कह सकते हैं, लेकिन वो चमत्कार होता है। As today you are hearing the word of God, in that word there is anointing, there is Holy Spirit, there is the power of the God. You can receive this miracle, the gift, when you receive the word of God, if you believe. जब आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप जब प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो ये वचन के अंदर शक्ति है, वचन जिंदा है। जब आप इसको सुनते हैं तो आप आत्मा के साथ में वो वरदान को, सामर्थ के वरदान को भी प्राप्त कर सकते हैं। We will go through some of the examples which is performed by the Apostle Peter and Apostle Paul. It is written in the Bible so that our faith will increase and we will have an understanding how God is using the gift of miracle, the working of miracle through his believers, so you can also be increase your faith and receive the gift. और जब हम आज इस वचनों के द्वारा
प्रेरित पतरस को, पौलुस को देखेंगे कि कैसे उन्होंने चमत्कारों की सामर्थ को और आत्मा के वरदान को इस्तेमाल किया। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा और आप भी विश्वास के साथ इस वरदान को प्राप्त करके प्रभु की सामर्थ को प्रकट कर सकते हैं। Acts, the book of Acts, chapter 3, verse 1 to 10, if you read, there we could see that Apostle Peter and John is going to the temple of God for the prayer. जब प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 1 से हम देखते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा पतरस और यूहन्ना जो परमेश्वर के चेले थे वो आराधनालय के लिए प्रभु की आराधना करने के लिए जा रहे थे। While they are on the way, they saw one person who is sitting on the gate of the beautiful and asking alms from the people. और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ता में एक सुंदर गेट, द्वार जो कहलाता था, उसके वहाँ पर एक जन्म का लंगड़ा वहाँ पर बैठता था। वो आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता था। Why? Because he was a lame man. He could not walk from the mother's womb. और वो व्यक्ति ऐसा था जिसने अपनी माँ की कुख से ही लंगड़ा पैदा हुआ तो कभी भी नहीं चला था। And when Apostle Peter and John was walking, this person looked very closely to Peter and John. जब पतरस और यूहन्ना उसी रास्ता से जा रहे थे तो इस व्यक्ति ने बहुत निगाह लगाकर उसको टकटका लगाकर देखा। His intention was to get some coins. उसका जो लंगड़े का ध्यान था कि वो कुछ सिक्के उनसे चाहता था। Because in those days the coins were gold and silver. उस समय पर चांदी और सोने के सिक्के होते थे। So he thought that these people may give some coins to me. और उसका ध्यान यही था कि शायद ये मुझे कोई सिक्का देकर जाएंगे। Apostle Peter and John, they saw that this person is looking and they went near to him. और जब पतरस और यूहन्ना ने देखा कि ये व्यक्ति भीख मांगने वाला उनको देख रहा है तो वो उसके पास गए। And they said to him, और उन्होंने जाकर उसे कहा, we have no coin, हमारे पास कोई सिक्का नहीं but है, what we have we are giving to you. हमारे पास जो है हम तुझे देते हैं। In the name of the Lord Jesus Christ, get up and walk. प्रभु यीशु के नाम से खड़ा हो और चल फिर। Listen, there is no big prayer. देखिए और सुनिए, वहां पर कोई बड़ी प्रार्थना नहीं थी। They did not pray for this person in 15 minutes. और इन लोगों ने 15 मिनट तक लेके इस भाई के लिए प्रार्थना नहीं किया था। When they saw a need, जब उसे पता चला कि उसकी क्या जरूरत है, when they saw there is a need, जब उनको पता चला क्या जरूरत है, immediately their action was performed there. और उसी समय उनका काम वहां पर उन्होंने किया। They went near to him by compassion. और वो तरस करके उसके पास गए। When you see a person in need, जब आपको पता चले कोई व्यक्ति जरूरत में because है, you are a child of God, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान because the हैं, Holy Spirit is dwelling in us, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, we have to be like Jesus. हमें भी प्रभु यीशु के जैसे बनना है। Move with compassion to the people. हमें भी तरस के साथ में लोगों के बीच में जाना है। And when you go near to him, जब आप उसके पास जाएं, give him Jesus. उन्हें यीशु दीजिए। How you give him Jesus? कैसे आप यीशु देंगे? How Peter has given. जैसे पतरस ने दिया, The same way you can speak to him. उसी समय उसी तरह से आप भी बात करेंगे। Peter said to him, पतरस ने उसे कहा, what we have we are giving to you. हमारे पास जो है हम तुझे देते हैं। What we have. हमारे पास क्या है? We don't have millions and millions dinar. हमारे पास करोड़ों या लाखों में दिनार नहीं है। We don't have crore rupees. हमारे पास करोड़ रुपया भी नहीं We है। don't have much plots. हमारे पास ज्यादा कोई बड़ी जगह भी नहीं We है। don't have many houses. हमारे पास ज्यादा घर भी नहीं है। What we have we can give to the people. हमारे पास जो है हम लोगों को What दे you सकते can हैं। give to the next room people. आप अपने कैंप में अपने अगले कमरे के दे सकते What हैं। you can give the people who sharing with you. और जो आपके साथ लोग रह रहे हैं आप उसको क्या देते What हैं? you can give the people who working with you. आपके साथ काम करने वाले लोगों को आप क्या दे सकते What you हैं? can give to your family people. आप अपने परिवार के लोगों को क्या देते What हैं? you can give to the people in your village. आप अपने गांव के लोगों को क्या दे सकते In the name हैं? of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु का नाम, Use the name of the Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु का नाम इस्तेमाल करो। It is to be used through your mouth. आपके मुंह से इस्तेमाल हो। It is to be used to your sound.
आपके मुंह से इस्तेमाल हो, It is to be used by your sound. Sound. आपकी आवाज में यीशु का नाम आने दो। So then what happened there? तो क्या होगा? Peter said, in the name of the Lord Jesus Christ, get up and walk. प्रभु यीशु के नाम से उठ खड़ा हो और चल। फिर पतरस ने ऐसा ही कहा। What he used there? वहां पर उसने क्या इस्तेमाल किया? First he used the faith in Jesus. उसने पहले प्रभु यीशु पे विश्वास को इस्तेमाल किया And he enabled the Holy Spirit in him. और उसमें पवित्र आत्मा को कार्य करने के योग्य बना दिया। So what was the gift was supposed to be there? The Holy Spirit used the gift of the working of miracle. और क्या चमत्कार वहां पर इस्तेमाल करना है, क्या वरदान इस्तेमाल करना है? पवित्र आत्मा ने वही वरदान, सामर्थ का वरदान इस्तेमाल किया। We don't know what gift to be used, but when you enable the Holy Spirit in you, He knows what gift to be used. He will use His gifts. हमें नहीं पता होता कि कौन सा वरदान कहां पर इस्तेमाल करना है। जब आप पवित्र आत्मा को मौका देते हैं तो वो जानता है क्या वरदान इस्तेमाल करना है। Now, Apostle Peter has given his hand to the lame man. और अब पतरस ने उस लंगड़े व्यक्ति को अपना हाथ दिया And he pulled him up. और उसे ऊपर खींचा। What is written in the Bible? और बाइबल में क्या लिखा है? He jumped up. और वो उसी समय खड़ा हो गया And he stand on his feet. और अपने पैरों पे खड़ा हुआ And he started to leap and rejoice in God. और वो खुशी मनाता हुआ कूदता रहा And he worshiped the Lord. और प्रभु की आराधना करता हुआ। You ask the person why you are jumping, man. Just keep in a chair, sit there quietly and worship the Lord. और आप भी कह सकते हैं पे भाई आप क्यों कूद रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? कुर्सी लेकर बैठिए, आराम कीजिए। But the person said, last many years from my mother's womb, I never walked, brother. And now my Jesus healed me. How I could sit, how I could stand. I will jump and I will leap and I will glorify my God. और वो कहेगा, मेरे भाई मैंने माँ की कोख से जब से जन्म लिया अब तक मैं कभी भी धरती पर नहीं चला। अब मुझे प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया। अब मैं बैठूंगा नहीं, मैं कूदूंगा, नाचूंगा और प्रभु की आराधना करूंगा। हालेलुया, Hallelujah. Because we are walking from our childhood till today, there is no problem for our legs. So we are not using these legs for Lord Jesus. और हमने जो बचपन से लेकर आज तक चलते आए हैं, हमारे लात पैरों में या टांगों में कोई भी मुश्किल नहीं आई, लेकिन हमने प्रभु यीशु की आराधना प्रशंसा के लिए अपने पैरों को कभी इस्तेमाल नहीं किया। We use always these two legs to go to buy the bottle, and we go to do the sins, and we go to many other places, but God has given us two legs, and God has given us the strength to praise Him, to worship Him, to go in the name of the Lord Jesus Christ and to present Him to other people. आज तक हमने अपने पैरों को, जो अपनी टांगों को सिर्फ बुराई के कामों के लिए इस्तेमाल किया। या तो हमने जाके बोतल लेकर आए, या हमने पाप किया है, लेकिन हमने कभी भी प्रभु यीशु के नाम के लिए, प्रभु यीशु के प्रचार के लिए अपनी टांगों को इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। ओ कितने लोग को बोल सकते मेरा पैर मैं यीशु मसीह को देता हूं। कितने जन ये बोल सकते हैं कि मैं अपने टांगों को, पैरों को प्रभु यीशु को देता हूं? आमीन। खड़ा हो सकते हैं? बोलो मेरा My legs are given to Lord Jesus. और कहिए कि मैंने अपनी टांगों को प्रभु यीशु को देता हूं। I will rejoice in Him. मैं उसमें आनंद मनाऊंगा। I will jump, I will dance and worship Him. मैं कूदूंगा, नाचूंगा, उसकी आराधना करूंगा। Next time when you worship, you jump and dance and worship जब God. आप अगली बार आराधना करें, आप नाचिए, कूदिए और प्रभु यीशु की आराधना कीजिए। हालेलुया। You can see a king in the Bible whose name is David. आप एक राजा को बाइबल में देख सकते हैं जिसका नाम है दाऊद। He was a king. वो राजा था। But when the ark of the God was bringing to Jerusalem, he jumped and worshipped and danced and worshipped in front of that ark of the covenant. और जब वो नेम का संदूक वो लेकर आ रहे थे, तो वो अपने राजा होने के पद को छोड़कर उस संदूक के सामने कूदता रहा, नाचता रहा। He removed his kingly
dresses. उसने अपने राजा होने की पोशाक को उतार दिया, He wore the normal dress. उसने अपने आम कपड़े पहन लिए, And in front of all his people, अपने लोगों के बीच he में started to jump, he started to dance, he started to worship on the road. वो कूदता हुआ, नाचता हुआ, आराधना करता हुआ सड़क पे चलता गया। He has no shame. उसको कोई शर्म नहीं आया। Do you have shame to worship God? क्या आपको शर्म आता है प्रभु की आराधना करने के Do लिए? you have shame to tell about Jesus to क्या- other people? क्या आपको प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए शर्म आता है दूसरे लोगों Do you के? have shame to share the gospel? क्या आपको सुसमाचार का प्रचार करने में शर्म आता है? Do you shame to pray for the needy people? क्या आपको जरूरतमंदों की प्रार्थना करने के लिए शर्म आता है? Can you say from your mouth that in the name of the Lord Jesus Christ, get up and walk? और आप कह सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से विश्वास करके कि भाई खड़ा हो और चल फिर, कह सकते हैं? Yes, nahi. In the name of the Lord Jesus Christ, I say, get up and walk. प्रभु यीशु के नाम से कहें कि खड़ा हो जा और चल फिर। What Peter said, you have to say from your mouth. जो पतरस ने कहा अपने मुंह से कहें। Open your Bible. अपनी बाइबल को खोलें। Acts chapter 3. प्रेरितों के काम 3 अध्याय Read that, what Peter said to the layman. 6 वचन में पढ़ें। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। प्रभु यीशु मसीहा के नासरी के नाम से चल फिर। बोलो ना। और एक बार। बाकी किधर गया? ऊपर से पढ़ो ना, सिल्वर गोल्ड चांदी और हाँ। आमीन। अभी एक एक आदमी दूसरे आदमी का मुंह देखो, हाथ में पकड़ो, जो अभी कहा है ना वो कहो, भाई उसको हाथ दे दो ना, दुश्मन है दोनों, नहीं है ना? और एक बार। पतरस ने नहीं भाई, आपने कहते आप पतरस ऐसा छोड़ दो। कहें कि मैं तुझसे कहता पतरस का हूं हो गया। सोना चांदी मेरे पास नहीं है। और एक बार, और एक बार शब्द से। हालेलुया। हालेलुया। बैठिए। Let us go to Acts chapter 5 verse 15 to 16. प्रेरितों की किताब 5 अध्याय का 15 और 16। When the gift of the miracle is performing through a person, जब एक व्यक्ति के द्वारा चमत्कार के काम प्रकट होते हैं, we cannot restrict that in this way it has to perform. और हम उसे ये नहीं सिखा सकते कि इस रास्ता से कर सकते हैं। It is the will of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की इच्छा होती है, It is the freedom of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की मर्जी है। When you want to be used through the Holy Spirit, you have to allow freedom to Holy Spirit. जब आप चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाएं, जहाँ इस्तेमाल होएं, तो आप उन्हें ही मौका देना है। You have to be a vessel in the hands of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा में एक इस्तेमाल होने वाले बर्तन की जैसे होना है। So when Peter was filled with the Holy Spirit, जब पतरस पवित्र आत्मा से भरा था, after that when he walked through the road, जब वो रास्ता पे चलता था, the people used to bring the sick people on the bed. और जो बीमार लोगों को बिस्तर पे साथ में उठाकर लेके आते थे To लोग, whom they will bring in the on the bed, बिस्तर पे किन लोगों को लेके आते those थे? people they could not walk. जो लोग चल नहीं पाते थे। So it is written that they bring their sick people and
put on the side of the road so that the shadow of the Peter will fall upon them and they will be healed. और वो बाइबल में लिखा है कि वो अपने बीमारों को बिस्तर पे लेटा कर लेके आते थे कि जो जानते थे कि जब पतरस चलेगा उसका परछाई ही अगर वहां पर पड़ेगी तो वो बीमार चंगा हो जाएगा। You want to be used by the Holy Spirit. अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा से इस्तेमाल होए, Holy Spirit can use your shadow also. पवित्र आत्मा आपकी परछाई को भी इस्तेमाल कर सकता है। It is not our will. ये हमारी इच्छा से नहीं, The will of the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा की इच्छा से Through है। your hand, the Holy Spirit can perform. आपके हाथ से प्रभु का आत्मा काम कर सकता है। Through your shirt, Holy Spirit can perform. आपके कपड़े से, आपकी कमीज से पवित्र Through आत्मा your काम कर shadow, सकता Holy है। Spirit can perform. आपकी परछाई से पवित्र आत्मा काम कर So you सकते have हैं। to allow the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा को मौका देना है। Read from 15-16. प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 15 और 16 वचन। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से बहुत लोग बीमारों को, अशुद्ध आत्माओं को, सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। So tell the other person that Holy Spirit will use my shadow also. और आप अपने नजदीकी भाई को कहें कि पवित्र आत्मा मेरी छाया को भी इस्तेमाल करेगा। So allow your shadow to go upon the people who want. और आप अपनी छाया को मौका दें कि जिनको चाहिए उनके ऊपर चला जाए। If your shadow has the power of the Holy Spirit, अगर आपके छाया में पवित्र आत्मा की how सामर्थ है much you may have in your body. और आपके शरीर में कितनी पावर सामर्थ So होगी। keep your body holy because it is the temple of the Holy Spirit. आप अपने शरीर को पवित्र रखें क्योंकि ये पवित्र हैकल है पवित्र आत्मा का। Holy Spirit is dwelling in your body. पवित्र आत्मा आपके शरीर में वास करता है। Keep it holy. इसे पवित्र रखें। Keep your legs holy. अपने पैरों को Keep your टांगों को hands holy. शुद्ध रखें, अपने हाथों को शुद्ध Keep रखें, your eyes holy. अपनी आंखों को शुद्ध Keep रखें, your ears holy. आप अपने कानों को Keep पवित्र your रखें, tongue holy. आप अपनी जुबान को Keep पवित्र your रखें, mind holy. आप अपने मन को पवित्र Keep your रखें, heart and your thoughts and your imaginations be holy. आप अपने हृदय को, विचारों को, अपने ध्यान को पवित्र रखें। Keeping holy means giving to the Holy Spirit. पवित्र रहने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को दीजिए। Bible says you are not your own. प्रभु का वचन कहता है कि आप अपने खुद के नहीं हैं, We are belongs to our Lord Jesus हम Christ. अपने प्रभु यीशु से संबंधित We हैं। already sold ourselves to the Lord. हमने अपने आप को बेच दिया है अपने प्रभु पिता को। You cannot say that it is mine. आप नहीं कह सकते हैं ये मेरा This है, body is not yours. ये शरीर आपका नहीं है, This body is belongs to the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा का शरीर है। And whatever you have received, it is not your own. जो कुछ भी आपने पाया है जो आपका नहीं It है, is God's own. ये भी प्रभु का है। The gifts what you have, it is not you have. ये It is not वरदान, your own. ये वरदान आपके खुद के नहीं हैं, It is belongs to the Lord. ये प्रभु की तरफ से हैं। The money which you have, जो पैसा आपके पास है it is not your own. ये आपका नहीं है, It is God's money. ये प्रभु का है। The wealth what you have, it is not your own. जो जायदाद आपके पास है वो आपकी नहीं है, It is God's. ये प्रभु की है। Give to the Lord and He will use you as a vessel in your hand. ये आप प्रभु को दीजिए, वो प्रभु आपको एक बर्तन, एक साधन की तरह इस्तेमाल करेंगे। Working of miracle can raise the dead people. और जो चमत्कार की शक्ति है वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। That you have also. ये आपके पास है Because you have received the Holy क्योंकि Spirit. आपने पवित्र आत्मा पाया Because the है, Holy Spirit is dwelling in your क्योंकि body. पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। So that you can raise the dead in the name of the Lord Jesus. आप भी प्रभु यीशु के नाम से मुर्दों को जी लाट सकते In हैं। Acts chapter 9 verse 36 to 43. प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 36 से लेके 43 तक। जाफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी।
वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा जाफा के निकट था। चेलों ने ये सुनकर के पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वह उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। ये बात सारे जाफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। Tabitha was dead. तबीता मरी हुई थी, She was in Joppa. वो जाफा में थी। And the disciples, they heard that Peter is nearby. और चेलों को पता चला कि पतरस याफा के पास They ही है। sent some persons and asked Peter to come up with और Joppa. कुछ लोगों को भेजकर उन्होंने पतरस से बुलाया कि आ जल्दी से हमारे पास आओ। So when Peter came, जब पतरस आया he went to the upstairs. और वो अटारी में upper गया, room. वो ऊपर चुबारे में गया He saw the Tabitha was dead. और उसने देखा कि तबीता मरी हुई है He sent all the people out of the और room. उसने सारे लोगों को बाहर भेज दिया Then he kneeled down and prayed to God. और घुटनों पे बलाकर वो प्रार्थना शुरू किया। He did not pray towards the dead body. वो मुर्दा से बातें करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। Body was dead, she cannot hear. वो मुर्दा तो वो मरी हुई थी, वो तो सुन नहीं सकती थी। So he prayed to God. वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था Kneel down. घुटनों पे आके। He prayed to God. वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा And he था turned towards the body. और वो जो प्रार्थना कर रहा था तो मुड़कर उसने शरीर से कहा, मुर्दा शरीर से, When if there is a body in the room कि वहां रूम पे एक मुर्दा शरीर है and you are alone there, और आप अकेले हैं वहां पर, do you pray there? क्या आप प्रार्थना करेंगे? You immediately go out or close the door. आप जल्दी से बाहर जाएंगे और दरवाजा बंद कर देंगे। Why? क्यों? You are afraid the body? आप मुर्दा शरीर से डरते हैं? Peter kneeled down there. पतरस वहां पर घुटनों के बल आया। Peter knelt and prayed to God. वो घुटनों पे आके प्रार्थना कर रहा था प्रभु से Then he turned towards the body. और वो मुड़कर शरीर को देखा। Then he said, फिर उसने कहा, Tabitha, come out. तबीता खड़ी हो जा। Tabitha became alive. और तबीता उठ खड़ी हो गई। He used, God, Holy Spirit used Peter to operate the gift of working of miracle. पवित्र आत्मा ने पतरस को इस्तेमाल किया सामर्थ की वरदान को लेकर। If it can happen through Peter, अगर ये पतरस के साथ हो सकता है, Holy Spirit can use you and me. पवित्र आत्मा आपको और मुझे भी इस्तेमाल कर सकता Through you है। and me, Holy Spirit can bring the dead people alive. पवित्र आत्मा हमारे बीच में से भी मुर्दों को जी उठा सकता है। So next time when in a need, some people dead, don't be afraid. Go and command that body to be alive. अगर किसी को जरूरत होगी अगले समय पर तो आप उसके बीच में शर्माए मत, डरे मत और जाकर प्रार्थना करें, वो मुर्दों को जिला उठेगा। So God will bring them alive. प्रभु उन्हें जी उठाएगा। Through Apostle Paul, पौलुस के द्वारा the people used to resurrect. और बहुत सारे लोग जी उठे। When Apostle Paul was preaching in a church, जब पौलुस एक कलीसिया में प्रचार कर रहा he था, went up to the late night. वो काफी रात हो गई There was a person who was sitting on the window. और एक व्यक्ति था, एक जवान था, वो खिड़की पे ऐसा बैठा प्रचार सुन रहा था He slept and fell down from the 3rd floor. और उसकी आंख लग गई और तीसरे माला से वो नीचे गिर गया। In Acts chapter 20 verse 7 to 12 you can read it.
प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 7 से 12 तक। सप्ताह के पहले दिन जब वह रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उसने उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे वह बहुत दिए जल रहे थे। तब यूतखुस नाम एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। तब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया। This person was dead. वो व्यक्ति मर चुका था। But when Paul came to know that, जब पौलुस को पता चला, Paul went down and threw himself on him and embraced him and said, do not be troubled because he is alive. और जब पौलुस को पता चला, वो नीचे उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा कि घबराओ नहीं, वो उसका प्राण अभी तक है। To activate the Holy Spirit in you. आप अपने अंदर पवित्र आत्मा को काम करने When you दीजिए। saw some need, जब आपको पता चले कि किसी को जरूरत है, deactivate the Holy Spirit there. पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। Apostle Paul went there and he saw the person was dead. ओ पौलुस ने देखा कि वो व्यक्ति मरा हुआ है He fell upon his body. और उसके साथ वो लिपट गया He fell upon his और body उसके ऊपर लिपट गया and he prayed. और प्रार्थना किया। He came up. वो ऊपर आया Then he said to the people और from a word of faith, और लोगों के साथ उसने विश्वास के शब्द बोले। he is not dead. वो मरा नहीं है। That is the word of faith. वो है विश्वास का The वरदान। person is still on the floor, वो व्यक्ति अभी तक नीचे भूमि पर है, but Apostle Paul he is releasing a word of faith. और उसने अपने मुंह से विश्वास के शब्द बोले There the person came up. और फिर इसी से वो व्यक्ति जी उठा। Whenever you see something is dead, जब आपको पता चले कुछ मुर्दा सा है, you use the word of faith. आप विश्वास के शब्द There बोलिए the gift of miracle will operate. और फिर इसी तरह से सामर्थ के चमत्कार के वरदान काम Any करेंगे। of your members in your body is dead, use the word of faith. Speak the word of faith. There the Holy Spirit will enable the gift of the miracle. आपके शरीर के अगर अंग कोई मुर्दा से हो चुके हैं तो आप विश्वास के साथ उन अंगों को बोलिए, तो आपके विश्वास के शब्दों से चमत्कार के काम शुरू होंगे। Gift of miracle is operating through the word of faith. और विश्वास के शब्दों से ही चमत्कार के काम वरदान काम करते हैं। Apostle Peter said, get up and walk. और पतरस ने विश्वास के साथ कहा कि खड़ा हो और चल फिर। The person cannot walk. जो व्यक्ति चल नहीं To सकता him, था, Apostle Peter is telling, get up and walk. That is the word of faith. और उसी व्यक्ति को पतरस कह रहा है चल फिर खड़ा हो जा। कोई शब्द जो बोले हैं विश्वास के शब्द हैं। Turning towards the dead body and saying, come up. और मुड़कर उस मुर्दा शरीर को कहना कि उठ जा, वो विश्वास के Using शब्द the हैं। word of faith. वो विश्वास के शब्द हैं। Laying upon the dead person's body and coming up and saying that he is not dead. और मुर्दा शरीर के ऊपर लेटकर और ऊपर आकर लोगों को कहना, Using the word of faith. विश्वास के शब्द बोलना। Whatever the things you see negative, you speak the word of faith. जो भी नकारात्मक बातें आप देख रहे हैं, विश्वास से बोलना शुरू करें। Seeing the result from the hospital, you speak the word of faith. अस्पतालों से अगर आप कोई काम देखना चाहते हैं तो विश्वास के शब्द बोलें। कोई इनाम देखना चाहते हैं तो When the lab report says that there are some sicknesses in your body, you speak
word of faith upon that report. जब लैब की रिपोर्ट कहे कि आपके शरीर में कुछ बीमारियां हैं, कुछ हालात खराब हैं, तो विश्वास के शब्द को बोलिए। When you see that your financial area there is a death, you speak faith, and you speak faith, there will be a life. आप अगर देखें कि आपकी आर्थिक हालात में मुर्दा सा काम हो रहा है, तो विश्वास से बोलना शुरू कीजिए। If you feel that your workplace is dead, you speak faith, word of faith, there will be a door opening. अगर आपको लगे कि आपके काम करने की जगह मुर्दा जैसे हो चुकी है, तो आप विश्वास के शब्दों को Through बोलिए। speaking the word of faith, you are operating the gift of miracle. जब आप विश्वास के साथ बोलते हैं, तो चमत्कार के वरदान को काम करने के लिए आप मौका देते हैं। When Apostle Paul was doing his ministry in Philippi, जब फिलिपियों में पौलुस अपने कार्य को सेवा को कर रहे थे, there was a slave girl coming behind them every day and proclaiming that these are the people who proclaim the word of God, they are the children of God. एक गुलाम जो भावी देने वाली औरत थी, वो आकर हमेशा उनसे कहती थी और कि ये तो महान परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाले और लोगों को सही राह दिखाने वाले लोग हैं। But when it is repeating many days, Apostle Paul got grieved and he turned and said to that girl, और जो बहुत दिनों तक ऐसे करती रही, तो एक दिन परेशान होकर पौलुस ने मुड़कर उस लड़की को देखकर कहा, Apostle Paul said, I command you in the name of Jesus Christ. और पौलुस ने उस लड़की से कहा, मैं प्रभु यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूँ, Come out of her, and it came out, and that very moment. और उसमें से दुष्ट आत्मा निकल जा, और उसी समय वो दुष्ट आत्मा निकल गई। When Apostle Paul knew that this is a demonic spirit, he turned towards the girl and said a word from his mouth. जब पौलुस ने जान लिया और जांच लिया कि ये इसके अंदर जो आत्मा काम करती है वो दुष्ट की है, तो उसने घूमकर मुड़कर उस आत्मा को निकाल दिया। Using the name of the Lord Jesus Christ. इस्तेमाल करके प्रभु यीशु के नाम को, Using the name of the Lord Jesus Christ through the mouth. अपने मुंह से प्रभु यीशु का नाम Through इस्तेमाल the sound करके of you. आपके मुंह से आवाज आना होगा, That has the power. तो उसमें शब्द में सामर्थ When है। you use the name of the Lord Jesus Christ, there is a power. जब आप प्रभु यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें शक्ति The है। name of the Lord Jesus Christ is the miracle working power. और प्रभु यीशु का नाम ही चमत्कार करने की शक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। So you start to use the name of the Lord Jesus Christ, you will see miracle in front of you, in back of you, sides of you, you will see miracle every day. आप प्रभु यीशु का नाम इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, आप चमत्कार को देखेंगे, आपके सामने, आपके पीछे, आपके दाएं और बाएं प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार होंगे। Any person is going through difficulty, you go to him nearby and command in the name of the Lord Jesus Christ, come out. They will be delivered. They will come to know Jesus Christ. He is the Lord and Savior. और अगर आप किसी को परेशानी और तंगियों में देखें, तो आप उसे जाकर कहें प्रभु यीशु के नाम से निकल जा, तो वो उसी समय परेशानियों से बाहर निकल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Use the name of the Lord प्रभु Jesus. यीशु का नाम इस्तेमाल करें। Open your mouth and say in the name of the Lord Jesus अपने Christ. मुंह को खोलकर कहें प्रभु यीशु के नाम से। Yeah, like that. In the name of the Lord Jesus Christ. Again. Thank you, Jesus. When Apostle Paul went to Lystra, जब प्रेरित पौलुस लिस्त्रा में गया, he was preaching in a meeting. एक सभा में वो प्रचार कर रहा था। While he was preaching, he saw a person who could not walk. और उसने देखा कि प्रचार करते समय के एक व्यक्ति जो चल फिर नहीं A सकता था। crippled person. A crippled person. Cannot walk. The legs are. और जो उसकी जो टांकें जो सीधी नहीं हो सकती थी, नहीं चल फिर In सकता Acts था। chapter 14, verse 8 to 15. Acts chapter 14, verse 8 to 15. प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 8 से 15 तक। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था।
पौलुस ने उसको टकटकी लगाकर देखा, उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, तो ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों पे चल, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकोनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर गए हैं। So Apostle Paul was preaching the word of God. और पौलुस परमेश्वर का शब्द सुना रहा था। A crippled person was sitting there. और पांवों का निर्बल व्यक्ति एक वहां पर बैठा हुआ था। And while he was preaching, he looked unto this person. और जब वो बैठा हुआ था, प्रचार सुन रहा था, and Apostle Paul knew that this person has faith to receive the healing. और पौलुस को पता चला कि इस व्यक्ति को चंगा हो जाने का विश्वास है। So to receive a healing, what you need? चंगा होने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा देने का है, शब्द यूज करेगा तो क्या प्रॉब्लम है? Apostle Paul knew that he has faith to receive the healing. पौलुस को पता चला कि उस व्यक्ति को विश्वास है कि वो चंगा होने की इच्छा Whatever you want रखता to है। receive from God, you need a faith. जो कुछ भी आप प्रभु से पाना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर विश्वास होना Faith चाहिए। in God. प्रभु पे विश्वास रखो। If you have faith in God, अगर विश्वास आपको प्रभु पे है, even in a negative situation, अगर नकारात्मक हालातों में even भी, in a very dark situation, बहुत अंधकार की जगह पर भी, have faith in God, अगर प्रभु पे भरोसा विश्वास है, there will be miracles. तो चमत्कार There होंगे। will be, God can perform healings. प्रभु चंगाई देगा। When Apostle Paul knew that this person has faith, जब पौलुस को पता चला ये व्यक्ति को विश्वास है, he used his sound, उसने अपनी आवाज, he used his mouth, उसने अपने मुंह को इस्तेमाल किया, he said to the person, और उसने व्यक्ति को कहा, what he said, क्या कहा? I command in the name of the Lord Jesus Christ. और मैं प्रभु यीशु के नाम से No. तुझे आदेश देता हूँ, Stand upon your feet. अपने पैरों पर खड़ा हो जा। What he said. क्या कहा? और एक बार, what happened then? क्या हुआ? हालेलुया। He jumped up and began to walk. और वो उछलकर चलने फिरने लगा। ऐसा नहीं उड़ा। He jumped up. वो उछला। If you hear some word, jumped up. अगर आप कोई शब्द ऐसा सुनो तो उछलो। Some word of God is speaking to you. कुछ शब्द परमेश्वर के आपसे बात करते हैं। You jump up and praise God. उस शब्द को लेकर आप कूद कर प्रभु की महिमा गाएं। You are using your strength, you are using your full body to worship God. आप अपनी पूरी ताकत को, अपने पूरे शरीर को उसकी आराधना के लिए दीजिए। Whenever you get a chance, you worship God. जब भी आपको मौका मिले उसकी आराधना करो। When you hear a word of God, jump up and give glory to God. जब आप उसका शब्द सुने तो उसकी महिमा के लिए आप कूद कर खड़े होकर आराधना करें। Hallelujah. हालेलुया। This person jumped up and worshiped God. और वो कूद कर प्रभु की आराधना He करने लगा started to begin walking. और चलने फिरने लगा। The people of that village, they are so amazed. और जब उन लोगों के, उस गांव के लोगों ने एक चमत्कार को देखा, वो हैरान हो And गए they said, God came to our और land. कहने लगे कि देवताएं हमारे बीच में उतर आए हैं। They put the name of the God to Barnabas and Paul. और बरनबास और पौलुस का नाम उन्होंने एक देवताओं के नाम पे रख दिया। They started to worship Barnabas and Paul. और बरनबास और पौलुस की वो प्रशंसा और आराधना करने लगे। Apostle Paul said, पौलुस ने कहा, don't commit the sin. पाप मत करो, We are same like you people. हम भी आपके जैसे व्यक्ति हैं। God was performed this miracle. प्रभु ने जो चमत्कार किया है, Give glory to God. प्रभु को महिमा दो, Worship to God. प्रभु की आराधना करो। Hallelujah. हालेलुया। Worship God. प्रभु की आराधना करो। This is how the miracles can ऐसे happen. ही चमत्कार काम करते If हैं। it happened through Paul,
then it can happen through you. अगर पौलुस के द्वारा ये काम हो सकते हैं तो आपके द्वारा भी हो सकते हैं। When Apostle Paul went to a proconsul's office, Acts chapter 13 verse 6 to 12. प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 6 से लेकर 12 तक। वह उस सारे टापू में होते हुए पाफूस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरग्युस पौलुस के साथ था और जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई के भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब Apostle Paul and team was in Cyprus. और पौलुस और बरनबास वो Apostle Paul and team. प्रेरित पौलुस और उसके साथी वो साइप्रस में प्रचार कर रहे थे। So there they started to preaching to the people. और वो लोगों को प्रचार कर रहे थे। The proconsul, whose name was Sergius Paulus, who called him and want to hear the gospel. और वहाँ का एक सर्गियुस पौलुस नामक एक हाकिम था, वो चाहता था कि वो प्रभु का वचन उनसे सुने। But once Paul started to preach, जब पौलुस प्रचार करना शुरू किया, there was a person along with the proconsul whose name was Elymas. और वहाँ पर एक हाकिम के साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था इलीमास। He was a false prophet, he was a Jew, he was a sorcerer. और वो एक टोना करने वाला और भविष्यवक्ता, अपने आप को झूठा भविष्यवक्ता था जो अपने आप को कहलाता था He यहूदियों का। started to saying against the gospel. और वो सुसमाचार के खिलाफ बात करने लगा। He don't want the Sergius Paulus to believe in Jesus. और वो नहीं चाहता था कि सर्गियुस पौलुस इस वचन पे, सुसमाचार पे भरोसा विश्वास करे। As this Bar Yeshu, that Elymas was doing these things, Apostle Paul was irritated and he started to speak to this person. और जब ये व्यक्ति ऐसे बातें कर रहा था जिसका नाम था बार यीशु था, और वो ऐसा जब करने लगा तो पौलुस ने उसको देखकर उसे कहा, He said, now the hands of the Lord will be upon you और उसे देखकर पौलुस ने कहा कि देख, प्रभु का हाथ तुझ पर है, and you will be blind. तू अंधा होगा। Immediately उसी वक्त his eyes became blind. उसकी आंखों की रोशनी He चली could गई, not see anything. वो कुछ नहीं देख पा रहा था। He asked the people to help him to और walk. वो लोगों से पूछने लगा कि मेरी सहायता करो। This is working of miracle. ये चमत्कार की शक्ति The है। people who is against the gospel, जो सुसमाचार के खिलाफ व्यक्ति हैं, they will see the miracles. वो चमत्कार देखेंगे, They will come to the faith. वो विश्वास में आएंगे। This proconsul, he saw this miracle. और जब इस हाकिम ने चमत्कार को देखा And he came to believe in Jesus और वो Christ. प्रभु पे भरोसा किया, So you can utilize, you can be used by the Holy Spirit. आप भी पवित्र आत्मा से इस्तेमाल हो सकते हैं। Holy Spirit will start perform miracles through your hands. पवित्र आत्मा आपके हाथों से भी काम, You चमत्कार के काम speak the word करेंगे। of faith. आप विश्वास के शब्द बोलें। God will open the opportunities to share the gospel. प्रभु आपके लिए मौके खड़े करेंगे कि आप उनके चमत्कार के काम करने के Wherever लिए, you see a need, you will have the compassion and go and share the gospel and use the word of God and utilize your mouth and tongue and sound and say the word of God or in the name of the Lord Jesus Christ, and then
there will be miracles. जब आप किसी बीमार को देखें, जरूरतमंद को देखें, तो आप वहां पर जाएं, अपने मुंह को, अपने हाथ को, अपनी आवाज को, अपने शरीर के अंगों को इस्तेमाल कर करके उसमें कहें और देखें कि प्रभु उनको चंगाई देगा, चमत्कार होंगे। Let us close our आइए eyes. अपनी आंखों को बंद करें। We heard the word of God. हमने वचन को सुना है, We heard many miracles. हमने बहुत सारे चमत्कारों के बारे में We सुना heard है। that Jesus can heal us. हमें प्रभु यीशु चंगा कर सकते हैं, We हमने सुना heard है। that Holy Spirit will work miracle through us. और हम पवित्र आत्मा हमारे द्वारा काम कर सकते हैं। Let us submit ourselves to the Holy Spirit. अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करें। Let us surrender our life to God. हमारे जीवन को प्रभु को समर्पण करें Let us give ourselves to the Lord. और प्रभु को एक साधन की तरह अपने आप को समर्पण Speak to करें the Lord and give yourself, your body to the Lord. और अपने शरीर को समर्पण करके प्रभु से बात करें। Take a decision that, Lord, I will use my mouth, my tongue, my sound, my legs, my hands for your work. और आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी टांगों को, अपने मन को, अपने अंगों को आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल कर पाऊं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना निर्णय करें, ले सब लो, जन, सब निर्णय जन। ले लो, निर्णय ले लो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, निर्णय ले लो। ओ समर्पित करो, समर्पित करो, समर्पित करो, निर्णय ले लो, समर्पित करो, समर्पित करो, निर्णय ले लो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, निर्णय ले लो। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अन्य भाषा में Enable the प्रार्थना Holy करें। Spirit. Enable the Holy Spirit is in you. Holy Spirit is in you. Enable Him. Speaking the tongues. ओ अन्य भाषा बात करो, अन्य भाषा से बात करो, अन्य भाषा से बात करो। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Let the Holy Spirit be enabled in you. Let the Holy Spirit give you miracles. Let the Holy Spirit use you for the kingdom of God. Pray that, Lord, use me in your kingdom. Those who want to submit your life for the Lord, those who want to be used in the kingdom of God, those who want to be used by the power of the Holy Spirit, those who submit your life for the gospel of the Lord, you can stand where you are. जो कोई भी अपने आप को समर्पण करना चाहता है, जो कोई अपने आप को प्रभु के लिए देना चाहता है, जो कोई विश्वास करता है कि मैं प्रभु के लिए कार्य करूं, सुसमाचार के लिए, वरदानों के लिए, वो अपनी जगह पर खड़ा हो सकता है। Stretch your hands and अपने say हाथों what को we are उठाएं। saying. और जो हम कहते हैं वो पीछे कहें। Father in heaven, पिता जो तू स्वर्ग में है, I give my life to your hand. मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। From today onwards, आज से my body will be a vessel for the Holy Spirit. मेरा शरीर पवित्र आत्मा का साधन बन जाए। Use me for the gospel. मुझे प्रभु के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करें। Through me, let the gospel be preached. मेरे द्वारा सुसमाचार का प्रचार होने दें। Through me, let God's name be glorified. मेरे द्वारा पवित्र नाम यीशु का ऊंचा होने दें। Jesus, I will lift your name, I will glorify your name. प्रभु यीशु, मैं आपके नाम को ऊंचा करूं, आपके नाम को महिमा देने वाला हूं। Holy Spirit, enable me to move with compassion when I see a need. प्रभु मुझे ऐसा बनाए, पवित्र आत्मा ऐसा बनाए कि जब मैं किसी को जरूरतमंद को देखूं तो मुझ में तरस की बातें आ जाएं। Holy Spirit, strengthen me to pray for the sick. और पवित्र आत्मा मुझे इतनी ताकत दे कि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूं। My hands, I submit to you, Lord. मेरे हाथ में आपको सौंपता हूं। My legs, I submit to you, मेरी Lord. टांगों को मैं सौंप देता हूं। My tongue and my mouth and my sound, I submit to you, Lord Jesus. मेरी जुबान, मेरा विचार, मेरी आवाज मैं आपको सौंप देता My हूं। heart, I surrender to you, Lord. मेरा हृदय मैं समर्पण करता हूं। Whenever I see an opportunity, a person in need, next time
I will tell your name, Lord. जब भी मुझे कोई मौका मिलेगा कि किसी को जरूरत है प्रभु, तो मैं आपका नाम उसे दूंगा। I believe that the Holy Spirit will make Holy Spirit will do the miracles through me. और मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा मेरे द्वारा कार्य करेगा। I believe the Holy Spirit will do healings through me. मुझे विश्वास है कि चमत्कार पवित्र आत्मा मेरे द्वारा करेगा, चंगाई मेरे द्वारा करेगा। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता Amen. हूं। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। यीशु मसीह की जय। Thank you everyone. थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु। आइए प्रभु की आराधना करें और इस तरह से खुशी से प्रभु की आराधना करें कि उसने अपने चमत्कार के वरदानों से हमें भरपूर कर दिया है। हालेलुया। वो सारी सृष्टि का मालिक है, हम उसके बनाए हुए